Good morning, friends. So this is continuation to our last video, and I'm once again with you for clarifying various doubts from the industry. And today we have following the stakeholders and from various industry. And let me introduce is Mr. Vikas and Ms. Surabhi, Mr. Amar Verma, and Mr. Ashish. So actually, the purpose or the objective of for today's small video, just to clarify what are the doubts, what are the confusions across the industry while implementing these labor forms and its various provisions. Because we need to implement and we have the current existing practice, industry practice. We have earlier laws that have been implemented from last 50 years, 60 years. सो अभी उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन व्हाट मे बी द रिपरकशन एंड हाउ टू ओवरकम so to best of my knowledge I will try to address your query. So now over to you guys. You can start with your query. So let's One of my questions, with the 50% wage definition rule, what are the common mistakes organizations are made and making and how they are avoid those mistakes? so this is very nice question. Thank you, Mr. Vikas. So this is very good question. Generally, if you have seen in various YouTube, WhatsApp video, and there are lots of other videos that you can see on WhatsApp or social media, professional media, एक जनरल भ्रांति थी. बेसिकली दिस वाज अ मिसकंसेप्शन कि 50% अब वेज होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं लोगों को समझ में आ रहा किसी की 1 लाख सैलरी है तो उसका 50,000 बेसिक होगा. It's not written in law. If you just, that's why I say, please read the law. What the parliament has articulated this definition. उन्होंने कहा है कि आपके जो एक्सक्लूजन्स हैं जो A2I में है, however, फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी ऑल रेम्युनरेशन है दीज आर वेजेस. तो वेजेस मीन्स ऑल रेम्युनरेशन. आप जितना भी किसी वर्कर को दे रहे हो वो वेज ही है. बट includes basic D retaining allowance, does not include A to I allowances. अगर आपके पास कोई policy based allowances है, जैसे HRA है, conveyance है, D special expenses है, LTA है या और अदर सिमिलर एक्सपेंसेस जो A to I में आ रहे हैं, तो वहां वो आपके एक्सक्लूड होंगे. तो सिंपली जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, हमारे वर्कर्स हैं या हमारे एम्प्लॉइज हैं और हमने उनको सैलरी स्ट्रक्चर जो बनाया है उसमें एक सैलरी देते, सपोज किसी की 50,000 रुपए सैलरी है. हमारे पास HRA और कन्वेंस की भी पॉलिसी है क्योंकि हमारी वर्कर किराए पे भी रहते हैं और वो लोग दूर से आते हैं जिनका उनका एक्सपेंस होता है डेली. तो हमने क्या करा कि पॉलिसी के हिसाब से कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं, HRA दे रहे हैं, बाकी का जो बचा बेस. तो ऐसे करना है कि आप, लेकिन फिर हमें टेस्टिंग करनी है कि जो अलाउंसेज हैं HRA कन्वेंस, इट कैन नॉट बी प्लस एम्प्लॉयर PF, ये तीनों कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ ऑल रेम्युनरेशन. तो कुल मिला के अगर आपकी 100 रुपए सैलरी है तो 50 रुपए से ज्यादा आपका HRA कन्वेंस और एम्प्लॉयर PF नहीं होना चाहिए. जब वो होगा वो डीम्ड बेसिस में चला जाएगा, फिर वो बेसिक ही मान लिया जाएगा. आई होप आई क्लैरिफाई. Yeah, there's one more point that what is deemed wages in this definition? दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन. इस पर मैंने काफी लिखा है, लिंक्डइन पर भी लिखा था कि बेसिकली डीम्ड वेजेस कैसे हो जाता है. मैं आपको बताऊंगा. आपकी 100 रुपए सैलरी है, आपका 25 रुपए चाहिए, 25 रुपए कन्वेंस है, ठीक है, और या मान लो आपका 30 रुपए चाहिए, 25 रुपए कन्वेंस है, तो 55 रुपए हो गया. तो आपका लिमिट जो है वो कितनी है, 50%. तो आपका तो 55 रुपए अलाउंसेस में हो गया. तो जो 5 रुपए है वो डीम्ड अलाउंसेस मान लिया, डीम्ड वेजेस मान लिया जाएगा. उस पर सोशल सिक्योरिटी के अंडर जो भी आपका PF है, ESIC है, ग्रेजुएटी है, वो सारी एप्लीकेबल. दिस इज डीम्ड. Right. Okay, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. And I would like to ask a question about with the new with the new code on wages. I would like to know how the employer will manage the compliance with the code. And second question is that how will manage the expectation of the employee in terms of total CTC and take home salary. So
Your question is quite subjective. Since you are in HR, so your perspective is to how to implement the compliances. So let me tell you, there is one good thing for it. Earlier we had 28 laws, and in each and every law we have a certain registers forms that we need to maintain. There are n numbers of return that we need to maintain. But now after implementation of this wage code, there is a very this is we can say there is a paradigm shift. अब आपको बहुत सारी रजिस्टर या रिटर्न वो नहीं मेंटेन करते हैं। अगर आप देखोगे कोड ऑन वेजेस में जब उसके रूल्स आएंगे, बेसिकली अभी स्टेट के रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो जो रजिस्टर है, जो बेसिकली द प्रोसीजरल एस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंट द कोड, वो स्टेट रूल्स होते हैं। तो आपके अभी जो ड्राफ्ट रूल्स भी देखोगे तो उसमें बहुत फ्यू फॉर्म्स हैं। किसी भी स्टेट में आप जाओगे क्योंकि आईआर कोड में कोई ऐसा रजिस्टर नहीं जो मेंटेन करना है आपके पास। इसके बाद में दूसरा कोड में बता दूं, सोशल सिक्योरिटी कोड, उसमें भी कोई ऐसे रजिस्टर नहीं जो आपको मेंटेन करनी है। केवल एक डिक्लेरेशन होती है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय से साइन करानी है। कोड ऑन वेजेस में 3-4 रजिस्टर होते हैं। एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, वेज रजिस्टर होता है, सैलरी स्लिप का वेज स्लिप होती है, और OHSW कोड जिसमें कि सर्टेन रजिस्टर्स होते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं एवरेज देखूं सारे स्टेटों में, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 8। तो जो पहले फॉर्म्स रजिस्टर थे 50-60, वो सब घट के कितने रह गए हैं? 8-10 विद इन 10। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि वो आप डिजिटल भी मेंटेन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एरा इज अ डिजिटल एरा, लाइक इनकम टैक्स। अब लेबर रिफॉर्म इनकम टैक्स की तरह डिजिटल हो जाएगा। आपको कोई भी पेपर वर्क करना ही नहीं, एक रिटर्न फाइल करना, ओनली वन रिटर्न अंडर OSSW फॉर्म 80, 9 पेज का रिटर्न है। आपको सब पोर्टल से ही आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। आपको कोई मैनुअल रिटर्न और कोई दूसरे एन नंबर ऑफ रिटर्न नहीं होंगे। जैसे पहले था पेमेंट ऑफ बेसिस रिटर्न, मिनिमम बेसिस रिटर्न, अब आपको एक रिटर्न। तो ऐसे इसके अलावा जो आपका CTC रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने उनको वेरीफाई किया था, तो आई थिंक इसमें आपकी क्वेरी एड्रेस हो गई। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन था क्या नेट सैलरी कम होगी। देखिए, नेट सैलरी सिर्फ वहां कम होगी जहां बेसिक 30% था, CTC का जहां 30% था, अब कोड के हिसाब से उसको 50% किया गया। तो क्या होगा, 50% पर PF कटेगा। तो जब PF ज्यादा कटेगा तो एम्प्लॉय का भी पार्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयर का भी पार्ट बढ़ेगा। तो उसका जो एम्प्लॉय का ज्यादा PF कटेगा वो एडजस्ट कहां से होगा? एम्प्लॉय की सैलरी से। उस केस में आपको एम्प्लॉय और वर्करों को बुला के सेंसिटाइज करना होगा कि आप आपकी सोशल सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, हम आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा कर रहे हैं रिलेटेड नेट, या फिर आपकी कंपनी उनकी नेट सैलरी बढ़ा रहे। गुड अप्रोच की जब आप एनुअल रिवीजन अभी किया था अप्रैल में, उसी टाइम पर कर रहे हैं। It means to say that कि if अगर किसी कंपनी में उनके अलाउंसेस नहीं होंगे, परचेजेस नहीं होंगे वैलिड, तो उस केस में भी उनकी बेसिक्स बढ़ेंगी, एंड इन दैट केस आल्सो उनकी नेट पे कम होगी। ऑफ कोर्स, देखो दिस में सीधा थंब रूल है। अगर आपकी एम्प्लॉयर PF पार्ट ऑफ CTC है और आपका PF बढ़ रहा है, तो CTC को बढ़ नहीं रही, राइट। तो जो PF बढ़ रहा है वो एडजस्ट कहां से होगा? वो आपकी नेट से ही है। रेफरेंस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो जो फॉरेन वेज आए हैं, रिफॉर्म्स जो आए हैं, उसमें उनको प्रोटेक्शन मिलेगी कुछ अलग से? देखिए, गिग वर्कर एक लैंडमार्क बेसिकली प्रोविजन है। मेरे हिसाब से ये बहुत मच अवेटेड था, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए जिस डिजिटल है। अर्लियर 20 साल पहले हम इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि तब इस टाइप की हमारी इकोनॉमी नहीं थी, हमारी बिजनेस जो हमारा बिजनेस का मॉडल्स थे वो उस टाइप से नहीं हुआ करते। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर वर्किंग लाइक E-कॉमर्स एंटिटीज आ गई हैं, मल्टी आपके वर्क ऑनलाइन वर्क प्लेसेस आ रखे हैं। अब जैसे आपके अमेजोन हैं, फ्लिपकार्ट हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। अब हो क्या रहा है कि आप सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कर हु आर, जैसे आपके ओला है, उबेर हैं, दे आर वर्किंग एंड ऑपरेटेड बाय अ मोबाइल ऐप। बट एज ऑफ नाउ
हमारे देश में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वो ऑर्गेनाइज से ज्यादा, बट उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप है, दिस इज अ वेलकम स्टेप, जिसमें उन्होंने उसके बारे में सोचा है। बट अभी क्या है कि आज की डेट में भी जैसे ये कोर्ट्स आ गए हैं, इनकी भी क्लीन रीडिंग अगर करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो अभी भी गिग वर्कर, अगर इफ यू डिप्लॉय गिग वर्कर, तब भी उसके साथ एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, वो आपका एम्प्लॉय नहीं होगा, आपके ऊपर कोई पीएफईएसआईसी की लायबिलिटी एज ऑन डेट नहीं है। अच्छी बात यह है कि गिग वर्कर से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। अर्लियर क्या था, ये ग्रे एरिया था, आपने गिग वर्करों से काम करा रहे हो जिनके साथ आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरी आपका जो रेम्युनरेशन बुक कर रहे हो वो तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो क्वेश्चन में हमेशा रहता था पीएफ अथॉरिटी, एसआईसी अथॉरिटी की, हाउ कैन यू पे दिस रेम्युनरेशन। आज की डेट में क्या है, गिग वर्कर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। इसमें क्या है कि गिग वर्कर को अपने आप को पहले वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और उसको एक कार्ड मिलता है। अगर किसी भी वर्कर के पास, गिग वर्कर के पास कार्ड है, यू कैन एंगेज। भाई जैसे लोडिंग अनलोडिंग एरिया है, आज जो आया वो जरूरी नहीं कल रहा है, एक दिन काम करके चला गया। आपने दिहाड़ी वर्कर अगर कहीं से उठाया है और उसकी सैलरी बुक कर दी बैलेंस शीट में, तो उसमें पीएफईएसआईसी की भी लाइबिलिटी बनती है। गिग वर्कर अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग में आपने वो हमारे यहाँ एक दिन काम करके गया, सिंस ही वाज अ गिग वर्कर, तो आप कंप्लायंस इजीली कर सकते हो। इसमें भी कंप्लायंस है कि आप गिग वर्कर को, एग्रीगेटर को जितना पेमेंट करते हो उसका एक आपका टर्नओवर और जो पेमेंट टू द गिग वर्कर, उसका कुछ एक रेशियो वो आपको deposit करते हैं। तो कुल मिला के गिग वर्कर की सारी फैसिलिटी और प्रोविजंस और वेलफेयर जो है वो अभी गवर्नमेंट करेगी। हाउएवर आप प्लीज इंश्योर करो कि उस वो गिग वर्कर रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनको, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, और अभी उसकी बेसिकली अभी उसके रूल्स नहीं आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट फॉर द वेलफेयर, तो उसकी स्कीम्स आए। सो सेम बेनिफिट्स एज एन एम्प्लॉय मिलेंगे। हाँ उनको वो, लेकिन अभी उन सबको जो स्कीम्स का बेनिफिट है वो उसकी लाइबिलिटी सरकार के ऊपर है। तो अभी कुछ स्कीम्स आएंगी, कुछ अगर अमेंडमेंट्स आते हैं तो पता चलेगा कि एम्प्लॉयर के ऊपर लगेंगे। अभी एज ऑन डेट आप एक्सप्रेस देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिटवीन गिग वर्कर एंड। So, sir, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, that is in the market as for the code and wages definition section 2Y. So, the wage includes the all the remuneration, and this may include the basic, DA, and retention. And there are total 9 items which are in the part of the exclusion item. So now my question is that how we do the calculation for the statutory compliances, say for the PF, ESIC, gratuity. However, the ESIC, there is a previous notification by the ESIC department that we have to complete the inclusion part, and wherever the exclusion is more than 50%, we have to add that. So what do you suggest? What is the better plan or better prospect for the organization? Because somewhere there could be possibility we cannot do this kind of calculation every month. If we are doing this, this will increase the workload for the payroll. So what is your best suggestion to do these kind of compliances in a very good manner? This is a very nice question. Thank you, Mr. Amir. So I advise first you check your existing CTC structure. Once you check your existing CTC structure, you will get to know the percentage of basic and what all the other allowances. Now come to the second phase. In the second phase, you need to check the legality of the allowances that you are providing to your workers. Whether if there is any policy, any documentation. Suppose you are paying conveyance allowance, flat 5,000 or you are, it does not matter to the person who is coming from 10 kilometers far away or who is just residing nearby to your flat or your establishment. So first, I request you to all the allowances which is currently existing in the nature, you need to verify whether is there any policy guarantee
If there is no policy, please draft policy. Then you will come to the conclusion these are the n number of allowances, policy based, cause based, legitimate allowances, and we are providing to the applicable employees or worker. Second, once you map these allowances according to the code on wages, then you will be able to ascertain what are the exclusion and what are the percentage and the sum of these all exclusion. जैसे आपने कहा A2I के अंदर, तो आपके पास A2I के जितने अलाउंसेज हैं उनका आप सम करोगे इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर पीरियड, देन यू विल गेट टू नो कि परसेंटेज 50% से ऊपर जा रहा है या नहीं. अगर आपका 50% से नीचे ही रहता है, then it's okay. This is your revised CTC structure. On the basis of this revised CTC structure, you need to implement the same in a payroll system. But you are very, आपका एक क्वेश्चन था that is very important कि once suppose हमें किसी को OT देना है, incentive देना है, which cannot be fixed because this is not fixed in the nature. So how to deal such kind of things? Suppose the company decide there is a performance annual bonus, performance linked bonus or performance linked commission. Like retail industry में क्या होता है जनरली कि अगर आपने 2 आर्टिकल बेचे पर डे, देन योर टारगेट इज कंप्लीट. ओवर एंड अब अगर 2 से बेचे तो एक मैट्रिक्स होती है कि एक बेचोगे तो 2%, 3 बेचोगे 5%. तो जब इस टाइप्स की अर्निंग आएगी जो कि फिक्स सैलरी से ओवर एंड अब है, तो हाउ व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी? दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन. इस केस में थोड़ा सा आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा. देखिए, अभी तक जो हम पीएफ ईएसआईसी काटते थे उसके लिए हमारे वेज फिक्स होते थे. पीएफ वेजेस, ईएसआईसी वेजेस, उस पर पीएफ निकाला. अब आपको अपना जो पीएफ वेज है या ईएसआईसी वेज है वो उनको डायनामिक बनाना पड़ेगा. अब डायनामिक कैसे बनेगा? फर्स्ट पोर्शन इज अ फिक्स, जिस पर तो पीएफ कटना ही कटना है, ईएसआईसी कटना ही कटना है. लेकिन जो एज ऑन बेसिस, एज ऑन अर्निंग बेसिस, एज इवेंट बेसिस, जैसे किसी का ओटी आ गया, किसी का इंसेंटिव आ गया, किसी का कोई बोनस आ गया, ठीक है, तो वो सारे कैसे आएंगे? लेकिन एक चीज और बता दूं, पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव इज नॉट अ बेसिस. उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. आपको चिंता करनी है सिर्फ ओवर टाइम. अभी एज ऑन डेट ओवर टाइम एंड कमीशन, बिकॉज बोथ कम्स अंडर एक्सक्लूजन. तो अगर आपके पास ओटी आया या कमीशन आया विच इज वेरिएबल इन नेचर, हो सकता है किसी महीने में 0 और किसी महीने में हो ही ना, या किसी महीने में बहुत ज्यादा आ जाए, तो उसमें जब आप वेज फॉर पीएफ और वेज फॉर ईएसआईसी लगाओगे तो वहां पर आपको कैलकुलेशन लगानी है कि सम ऑफ एक्सक्लूजन इफ ग्रेटर देन 1/2 ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन, तो जो एक्स्ट्रा है दैट वुड बी एडेड टू द बेसिस, और जो ऐड होके आएगा उस पर पीएफ का, उस पर ईएसआईसी. इसका मैंने एक एक्सेल वाला फॉर्मूला बनाया था, मैं आपको शेयर कर दूंगा. एंड ऑल द पेरोल कंपनीज they are required to implement such laws. Thank you, sir. So, as per my understanding, whatever the statutory compliances now what we have to do, that has to be based on the calculation of inclusion and exclusion. Wherever the exclusion is higher than, then we have to add it back, and we have to systemize our payroll software or the whatever tools we are using. We have to customize it according to that, so that we came to know the exclusion is over and above the 50% or not. And according to that, the statutory compliances should be calculated. Yes. Correct. One more question that was, I think, I'll take it soon over. Various industries have been frequently being asked such one question on gratuity. The people keep asking me, sir, the person, the employee who was resigned after enactment of this code, after 21st नवंबर 2025 के बाद अगर जो वर्कर या गए हैं और उनका जो हमने ग्रेचुटी का पेमेंट किया है, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर, जो हमारा पहले था दैट वाज सपोज 40% था, तो दे आर नॉन कंप्लाइंट. ऑफ कोर्स दे आर नॉन कंप्लाइंट. देखिए इसमें क्या है कि इसमें मैं बताता हूँ कि वो तो नॉन कंप्लायंस है ही. अब देखिए अभी नॉन कंप्लायंस, इसमें 2 नॉन कंप्लायंस है, वन इज द फाइनेंशियली, वन इज द लीगल. अब मैं फाइनेंशियल पर बात नहीं करूंगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात होती है, उनके प्रोविजंस हैं, बुकिंग करनी होती है, अप डाउन करनी होती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टेगा कॉल. बट लीगलिटी की बात अगर करें तो लीगली देयर इज अ नॉन कंप्लायंस.
इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी है यू नीड टू रिवाइज द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेच्युटी फॉर ऑल द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज हु हैव बीन रिजाइन्ड आफ्टर 21st November 2025 and difference money can be paid to the employees, executive employees or workers with one explanation कि according to the code on basis definition earlier आपका ये था, अभी ये difference money तो I am paying to accordingly you maintain your records so that you will be fully compliant. क्योंकि जो क्वेश्चन है कि क्या वेज डेफिनेशन 21st नवंबर से इफेक्टिव है या नहीं, अभी रूल्स नहीं आए हैं, पहले ही मैंने बताया था, ये एकदम आई एम वेरी क्लियर. Wage definition has already been implemented on 21st November 2025. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रूल्स आएंगे टू डिस्कस द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. फॉर्म कैसे बनेगा, रजिस्टर कैसे बनेगा, रिटर्न कैसे बनेगा, अपील के फॉर्मेट क्या होंगे, दिस इज जुरिस्डिक्शन एंड ऑल दैट, अपॉइंटमेंट ऑफ अपील अथॉरिटी. बट जो मटेरियल है वो है वेज डेफिनेशन, इसे स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, तो इसको तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ये भी पीएफ के लिए भी वही वेज डेफिनेशन, ईएसआईसी के लिए भी. दूसरा एक और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ईएसआईसी कब से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी तक एग्जिस्टिंग क्या था, ईएसआईसी इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस. भाई जिसकी ग्रॉस सैलरी किस हजार से ज्यादा उसका तो ही वाज नॉट अ मेंबर. बट नाउ द वेज डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड. नाउ इन केस इफ योर वेज इज अप टू 21,000, तो जो 40,000 ग्रॉस वाला भी है, 42,000 ग्रॉस वाला भी है, और जिसकी बेसिक सैलरी 21,000 है, तो वो भी कवरेबल है. तो अभी बहुत जगह ये नॉन कंप्लायंसेस है, लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं. वे कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द ईएसआईसी डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर व्हेन इनैक्टमेंट, जो कि एक्ट है, पार्लियामेंट ने जिसको लेजिस्लेट किया, वो नोटिफाई हो गया, जिसमें पोस्ट वेज डेफिनेशन आ गई, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि गजट में एक्ट आने के बाद फिर उसको दोबारा से कोई आपको बोल. तो भाई जो भी जिनकी वेजेस अप टू 21,000 हैं और जो ईएसआईसी में कवर नहीं है, आपको ईएसआईसी में उनको कवर करना है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना है. अदरवाइज यू विल फेस अ पेनल कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी, डैमेज, इंटरेस्ट, इंक्वायरी इनिशिएट. आई होप अगर और कुछ मैंने आपकी क्वेरीज के अलावा कुछ और अगर आपको डिस्कस करना है तो दैट वुड बी वेरी नाइस. I'm happy to address all that. Thank you, sir. It was very nice discussion. Thank you, dear friends.